Hello everyone, thank you for joining the CISSP class. So today we are going to cover the protection mechanism. Okay, so what is protection mechanism? Protection mechanism are security measures put in the place safeguard computer systems and data from unauthorized access. Okay, alterations or destructions. Okay, these mechanisms work together to create a robust security posture. ठीक है. So also in cyber terms we called it also protection controls. Okay, when we say protection mechanism, if someone saying that protection control, that also okay. So in this protection controls, majorly not, we are not going to cover the entire things, but yeah, to not all the security controls might have them, but many controls offer their protections through the use. Okay, for this mechanism, some of the common example for this protection mechanism or protection control are defense in depth, ठीक है, abstraction, data hiding and encryptions. So today we are going to cover the first one is the defense in depth. ठीक है, तो डिफेंस इन डेप्थ समझने से पहले एक बार हम लोग को उसका डायग्राम समझेंगे, तो पहले प्रोटेक्शन मैकेनिज्म समझ लेते हैं. ठीक है, एंड प्रोटेक्शन कंट्रोल. तो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म स्ट्रेट फॉरवर्ड है टू इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड पैरामीटर. They will be applied for a protection mechanism where, let's suppose, imagine your company use a firewall. ठीक है, to protect its internal network from external threats. ठीक है, the firewall act as a imagine your company use a firewall. So firewall act as a barrier between the internal network and the इंट्रानेट एनालिसिस. ठीक है, इंट्रानेट एनालिसिस द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक. ठीक है, डेफिनेटली अगर कभी हम लोग का इंटरनेट रहता है एंड आपका इंट्रा नेटवर्क रहता है, ठीक है, तो ये आपको बॉर्डर जैसा काम कर रहा है, यहाँ पे फेयरवेल है. ठीक है, सो ये क्या करता है, आपका इनबाउंड एंड आउटबाउंड जो भी आपका डेटा, मतलब इंट्रानेट से इंटरनेट को जा रहा है एंड इंटरनेट से इंट्रानेट पे आ रहा है, ये आपका यहाँ पे ट्रैफिक एनालिसिस करता है. ठीक है, analysis incoming and outgoing traffic. It uses a set of predefined rules to allow or block specific type of traffic, such as blocking malicious traffic or unauthorized access attempts. ठीक है, this protection mechanism prevent unauthorized access to internal systems, reducing the risks of data breaches. So majorly we call that, see, another aspect understanding of the applying of the security controls, the concept of protection mechanism or protections control. Not all security controls must have them, right? तो उसको ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करने के लिए नाउ वी आर फोकसिंग द 5 एलिमेंट. सो वन इज द डिफेंस इन डेप्थ, abstractions, data hiding and encryption. So where it is coming to the environment or coming to the real time world, because we cannot rely or depend any single layer of defense. ठीक है, लेट सपोज आप एक सिक्योरिटी पैरामीटर इंप्लीमेंट करो, आप बोलोगे नहीं मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूंगा ना, एक इनबाउंड आउटबाउंड सारे अटैक रोकने के लिए खाली फेयरवेल लगाऊंगा. इफ फेयरवेल गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, डू वी हैव एनीथिंग इन द प्लेस इन टर्म्स में कंपल्सरी कंट्रोल और इन टर्म्स में डिफेंसिव अप्रोच. यहाँ पे अगर वेफ है, अकोमाइफ है, दो फेयरवेल है आपका यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें रहता है, हनीपॉट सॉल्यूशंस है. So that is the reason we said to layering our security controls. We definitely discuss what is layering and everything, but now today we are going to cover the defense in depth. Okay, today we are going to cover the defense in depth. So let's discuss the defense in depth. Okay, suppose his name is Ram. Okay, and he is a attacker. So he joined a company called AD Groups. ठीक है, and he faced a lots of attack is happening with the multiple systems or his banking sites, because it is related for a banking
the company is delivering the banking domains or banking पोर्टल्स, बैंक रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो कि ये बैंक रिलेटेड काम करता है ये कंपनी, ठीक है। उसको मतलब ज़्यादा इसको नहीं खींचते। सो लेट सपोज इसको आप ये सोचो कि ये सेट कि ठीक है, मुझे अभी डिफेंस इन डेप्थ इम्प्लीमेंट करना है एक एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डिफेंस इन डेप्थ। डिफेंस इन डेप्थ इज एन अप्रोच वेयर मल्टी लेयर। कभी भी आप सी आई एस एस पी का या कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो आप पहले कोई भी क्वेश्चन अगर नॉर्मल सेंटेंस में पढ़े तो यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट, ये दिस इज द बेस्ट अप्रोच। आप पहले ये देखो क्या बोल रहे हो, ठीक है। डिफेंस इन डेप्थ इज एन अप्रोच वेयर मल्टी लेयर ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड रिडोडेंट। ऊपर हम लोग अभी डिस्कस किए कि अगर एक भी डाउन होता है तो अनदर विल बी प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ अटैक और एक्टिविटीज, ठीक है। रिडोडेंट प्रोटेक्शन इफ वन लेयर फेल, ठीक है, other layer are in place to defend against potential threat। तो अभी रियल टाइम डिस्कस करने से पहले आप देखो कैसे एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये मैं डिफेंस इन डेप्थ का बना रहा हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया है, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे मेरा डेटा है, ठीक है, बिकॉज कंपनी का डेटा इज द मोस्ट सेंसिटिव थिंग्स, राइट। यहाँ पे क्या है, अटैकर है, ठीक है, ही इज अटैकिंग फ्रॉम पब्लिकली, पब्लिक से। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरा फेयरवेल है एक लेयर में, सेकंड मेरा वेफ है। तो ऐसा नहीं होता है, बट डेफिनेटली मैं खाली आपको समझाने के लिए बता दे। यहाँ पे फिर से मैंने एक फेयरवेल रखा है। ये लेयर पे मेरा मान लो हनीपॉट रखा है मैंने, हनीपॉट। ये लेयर पे मान लो मेरा सॉक टीम है, ठीक है। यहाँ पे मेरा आई डी एस आई पी एस है, आई डी एस आई पी एस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, वो डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। सो आप देख रहे हो ना कितना लेयर है टू प्रोटेक्ट द डेटा। दिस इज द सिंपल थिंग, आप सोचो मल्टी लेयर है, कितना लेयर हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट द डेटा। दैट इज कॉल्ड डिफेंस इन डेप्थ। दिस इज द सिंपल। लेट्स डिस्कस द रियल टाइम सिनेरियोस, यू विल बी able to get a better visibility and clarity on the concept, okay। Suppose consider an online banking system that एम्प्लॉयज इन डिफेंस इन डेप्थ, ठीक है। आप सोचो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसको हम डिफेंस इन डेप्थ इंप्लीमेंट करना है। व्हेन ए यूजर एक्सेस देयर अकाउंट, ठीक है, दे नीड टू प्रोवाइड देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड। फर्स्ट लेयर, समझ लो ये फर्स्ट लेयर पे उन्होंने आईडी डाले एंड पासवर्ड डाले, ठीक है। आफ्टर दैट वन टाइम ओटीपी सेंड टू देयर मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। जब आईडी पासवर्ड डालते हैं ये पोर्टल पे, राम ने ये इंप्लीमेंट किया था, एक ओटीपी भी जाएगा, ठीक है। दिस इज द सेकंड लेयर, ठीक है। दिस इज द सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर आईडी पासवर्ड, सेकंड लेयर ओटीपी, ओके। ओटीपी, then if the OTP match, the user gain access to the limited view of their accounts and is prompted to answer a security questions। थर्ड लेयर, ठीक है। तो थर्ड लेयर पे राम ने क्या किया, ठीक है, अब जब आईडी पासवर्ड एंड ओटीपी दो लेयर कवर हो जाएगा, तो थर्ड लेयर में उसको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ और व्हाट इज योर वेयर यू बोर्न एंड व्हाट इज योर समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस बहुत सारी चीजें रहता है। तो थर्ड लेयर पे उसने क्या है, सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। limited account to the prompt to the security questions, this is the third layer, okay। if all checks pass, they finally gain access to their account, ठीक है। this multi-layer approach ensures that even if a hacker gets hold of the username and password, कि मैं आपको बताया था शोल्डर सर्फिंग हो गया है कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल इसको आईडी पासवर्ड पता है, ठीक है, ठीक है। he can compromise the first layer, but what about the second and third layer, OTP and the questions, right। दिस इज कॉल्ड डिफेंस इन डेप्थ, जहाँ पे आपका डिफेंस इन डेप्थ में मल्टी लेयर सिक्योरिटी होता है, ठीक है। इसको आप फोकस करो। ऑल द चेक्स पास द फाइनली गेन एक्सेस टू द अकाउंट, द मल्टी लेयर अप्रोच, ठीक है, इंश्योर दैट इवन इफ ए हैकर गेट
hold the ID and password. They still need OTP, right? And knowledge for the security questions to succeed, making it significant header or harder for a attacker. ठीक है. ऑफ कोर्स अगर मेरा मल्टी सिक्योरिटी में इम्प्लीमेंट करता हूँ तो अगर दो भी कंप्रोमाइज होता है तो मुझे एक इश्योरिटी रहता है, हाँ थर्ड तो है, बट दैट शुड बी प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड, राइट. मैं आपको रियल टाइम मतलब पीपल आर इम्प्लीमेंट थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, बट इफ इट इज नॉट properly in line with the process, in line with the implementations, not properly implemented, not properly updated as per the baselines, so it could be also bit compromised any of the layer you are mentioning. But yes, to understand डिफेंस इन डेप्थ आप ये सोचो कि मल्टी लेयर जहाँ पे होता है उसको हम लोग डिफेंस इन डेप्थ इम्प्लीमेंट करते हैं. लेट्स डिस्कस वन या टू सिनेरियो मोर, सो विल बी गेट ए बेटर क्लैरिटी ऑन इट. ओके, आप अभी देखो डिफेंस इन डेप्थ कितना मतलब क्रिटिकल इम्पैक्ट करता है ऑन द रियल टाइम एनवायरनमेंट. डेटा सेंटर सिक्योरिटी. लेट सपोज मैं एक डेटा सेंटर ऑडिट कर रहा हूँ इस एनवायरमेंट का, ठीक है, राम ऑडिट जाके ऑडिट कर रहे हैं. सो एक डेटा सेंटर में क्या क्या हम लोग देखते हैं सिनेरियो, एक्सेस कंट्रोल, सर्विलेंस एंड बायोमेट्रिक्स. मैं खाली आपको डिफेंस इन डेप्थ समझाने के लिए ये बोल रहा हूँ, बट बहुत सारी चीज रहता है, ठीक है, टू assess the data center and physical, in terms of a physical security assessment of the data center. In highly secure data center, ठीक है, डिफेंस इन डेप्थ इज critical to safeguard sensitive information and systems. Access control is the first layer, ठीक है, of defense, where physical access to the data center is restricted to authorized personnel only. Employees needs to use access card or की पॉप्स टू एंटर द परमिशन. डेफिनेटली एक होता है ना, डिस्कस हम लोग करेंगे फिजिकल सिक्योरिटी में क्या किसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, राइट. सो जब फिजिकल सिक्योरिटी का जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना तो विल बी डिस्कस एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट. आपका टॉन स्टाइल क्या होता है, मैन ट्रैप क्या होता है, लाइटनिंग कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, जजमेंट क्या है, डॉग्स क्या है, सिक्योरिटी गार्ड. सो डेफिनेटली, सो लेट सपोज हम लोग जैसे जाते हैं हम लोग कोई भी एनवायरमेंट में, जैसे आपका एक मशीन है, ठीक है, जैसे आप डेटा सेंटर घुस रहे हो, यहाँ पे आपका कार्ड है, यानी यहाँ पे गो थ्रू रहता है, तो एक जो यूजर है यहाँ पे कार्ड टच करके, जैसे मेट्रो वगैरह कहीं पे भी ना, इसको हम लोग एक्सेस करके जाते हैं. सो दिस इज द थिंग ही मेंशन हियर, एक्सेस कार्ड वगैरह जो आप जाके वी कैन एंटर द प्रेमिसेस, ठीक है. द सेकंड लेयर, ये आपका फर्स्ट लेयर हो गया, ठीक है, आप कार्ड एक्सेस किया, एंट्री कर लिया डेटा सेंटर पे. सेकंड लेयर इन्वॉल्व सर्विलेंस कैमरास प्लेस स्ट्रेटेजिकली टू मॉनिटर एक्टिविटी विद इन द डेटा सेंटर्स. आप कुछ भी कर रहे हो डेटा सेंटर पे, ये आपको मॉनिटर कर रहा है. दिस कैमरा हेल्प्स इन आइडेंटिफाई एंड सस्पिक्स बिहेवियर और अनऑथराइज एक्सेस. जैसे आप फॉर एग्जांपल एक डेटा सेंटर का रूम है, ठीक है, एक रूम है वहाँ पे, हब रूम है, ठीक है, हब रूम है जहाँ पे कुछ ब्लेड सर्वर चेचिस सर्वर रखा हुआ है एंड कुछ सिस्को का एंड जुनिफर का स्विचेस वगैरह कुछ रखा हुआ है, ठीक है, एक हब रूम में. तो आप क्या कर रहे हो, आपका उस पर राइट्स नहीं है, बट आप क्या कर रहे हो वहाँ पे भी जाके देख रहे हो, ठीक है. बट उसमें क्या है, इसलिए हम लोग सेकंड लेयर पे रखा है कि कुछ भी अगर सस्पेक्स एक्टिविटी होता है तो कैमरा में मुझे विजिबिलिटी रहे, ठीक है. इज द सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस. थर्ड लेयर इंक्लूड बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशंस फॉर स्पेसिफिक सेंसिटिव एरिया विद इन द डेटा सेंटर. क्योंकि आपका डेटा सेंटर पूरा ओपन नहीं रहता है, कोई भी फ्लोर में आप जाते हो कहीं पे भी रहते हो ना, उसका हमेशा गेट रहता है, ठीक है, गेट रहता है, और यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक्स रहता है. तो इफ यू आर द ऑथराइज पर्सन, अब यहाँ पे आपका एक्सेस कार्ड टच करके आप उसको मतलब एंट्री कर सकते हो उस रूम में. सो बायोमेट्रिक्स फीचर्स फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन्स एट एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी, मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर अनऑथराइज इंडिविजुअल्स टू गेन एक्सेस. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ पे डिफेंस इन डेप्थ के लेवल पे आपका जो मेन गेट था, यहाँ पे जो आप एंट्री करो यहाँ पे आप अलाउ हो गए, ठीक है. अब यहाँ पे अलाउ होने के बाद यू सेट कि हाँ ठीक है, सेकंड लेयर पे आपका कैमरा वगैरह है, आपका सीसीटीवी कैमरा वगैरह आपका लगा हुआ है, ठीक है, टू सी योर विजिबिलिटी. बट आप जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आते हो एंड फिर मैंने क्या किया, डेटा सेंटर पे हर जगह पे बायोमेट्रिक्स का गेट पे बायोमेट्रिक्स लगा के रखा है. इफ यू आर नॉट ऑथराइज पर्सन यू वोंट बी गेट इनटू इट, राइट. ये मेरा थर्ड लेयर डिफेंस हो गया. देन सो इफ यू सी दिस, तो डेफिनेटली डिफेंस इन डेप्थ इज द सेम, कि आपका अगर मल्टी लेयर डिफेंस आपको सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है, इज द सेम थिंग, ठीक है. आई हैव फ्यू मोर सिनारियोस, तो एक बार लेट्स डिस्कस ऑन इट, राइट. क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन सिक्योरिटी.
सिनेरियो बेस्ड. सो लेट सपोज आपका वेब फेयरवेल है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी लॉगिंग है. So for cloud based applications, defense in depth is a but vital uh, vital to protect against web based attack and data breaches. ठीक है. A web applications firewall act as a first layer, inspecting the filtering HTTP request to applications with applications. It can block known attack. ठीक है. It can block known attack पैटर्न्स लाइक सीक्वल इंजेक्शंस और जो भी हम लोग बहुत सारे अभी एनटीएपीटी फंक्शनलिटी आ गया, बहुत सारी चीज़ होता है ना, डॉस रीडॉस फंक्शनलिटी वेब पे आ रहा है. एंड आपका सारे एप्लीकेशंस लेवल लेवल पे क्या क्या अटैक हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट. वो भी आपका एनटीएपीटी, अगर एपीटी एडवांस थ्रेट परसिस्टेंस करके होता है एटी फंक्शनलिटी, उसके लिए यू नीड टू पे समथिंग मोर. ओके, अभी रिडायरेक्ट नहीं होते और कहीं पे, जस्ट फोकस ऑन द डिफेंस इन. तो आपका ये वेफ ये करता है. ठीक है. तो सेकंड लेयर, पहले लेयर पे मैंने वेफ लगा दिया, सेकंड लेयर पे मैं ये बोल रहा हूँ कि इंक्लूडिंग मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन टू लॉग इन द यूजर बाय यू नो requiring user to provide an additional form of authentication such as one-time code sent their mobile devices. The application mitigates the risk on authorized access even if the user has the password is compromised. Definitely अगर शोल्डर सर्फिंग से किसी ने पासवर्ड देख लिया है, कोई हैकर ने, राइट, तो मेरे पास अगर ओटीपी रहेगा या मैं वहाँ पे मान लीजिए 2FA इम्प्लीमेंट करके रखा हूँ या MFA इम्प्लीमेंट करके रखा हूँ, राइट, तो वो अगर पता भी होगा तो ही नॉट एबल टू एक्सेस दैट पोर्टल. ठीक है. थर्ड लेयर डिफेंस इन्वॉल्व्स comprehensive security login and monitoring. All applications activities are logged. हम लोग डिस्कस किया था ना आई ट्रिपल ए में, आई ट्रिपल ए identification, authentication, authorizations, accounting. When we talking about the logs, it is come under your auditing. ठीक है. AUDITIH, right. एक बार please, if you are not seen that video, please go and see the 10th video, number 10th. Okay. So यहाँ पे आपका will discuss on the login and monitoring application log with the security terms and analysis. This logs to detect an unusual behavior or potential security incidents. This help an incidents to response responding to threat properly. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं लॉग्स वगैरह भी रहेगा तो मैं एनालिसिस कर सकता हूँ अगर कोई अगर सस्पेक्ट एक्टिविटी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है. सो द रियल टाइम सिनेरियो इलस्ट्रेट हाउ डिफेंस इन डेप्थ इज अप्लाई इन द डिफरेंट एनवायरमेंट to create a robust and resilient cybersecurity posture. By developing multi-layer of security controls, organizations can better protect their asset, sensitive data from various cyber threats. Right? So this is the defense in depth. Okay, guys. So in the our next video will be cover the abstractions, data hiding, and encryptions. Don't worry about that. I'll be cover entire things. And please let me know if I need to improve any of my video, because I have this is my 11th video in YouTube. So something, if you are not able to understand or if I need to improve somewhere, please let me know. I'll be work on it. Okay. Thank you so much, guys. We'll connect with the in our upcoming videos. Thank you.